In this poem, the ball poem, poet is talking about a ball and a little bit describes the situation. ये अजीत सिंह कौन है भाई? चलो ठीक है। तो दिस पाल पोएम डिस्क्राइब्स द साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एगोनी ऑफ अ चाइल्ड व्हेन ही लूजेस हिज थिंग्स। यानी बचपन में जब बच्चे की चीज खो जाती है, पार्टिकुलरली खेलने की प्यारी चीज, कोई जिसे बहुत अफेक्शनेटली अटैच होता है, तो उस पर क्या गुजरती है। This thing has been described and mentioned here by the writer. So, the ball poem, ball means गेंद की कविता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, we should read first. A boy loses a ball. एक बच्चा है who has lost his ball. He is very upset, means in a great agony of losing. A ball does not cost much, and for that child means for every child, because a boy loses a ball है, और एक बच्चा unknown means it applies for each and every one. हर बच्चा जो भी खोया है, उस बच्चे के लिए जो a ball does not cost much, हर बच्चे के लिए जिसकी बॉल या प्यारी चीज खो जाती है, वह चीज या वह बॉल मायने नहीं रखती। बॉल इज हियर सिंबलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग which is loved by the little child boy kid. So उस बच्चे के लिए बाल मायने नहीं रखती है कि कितनी महंगी है, क्या है, what is the cost of ball, but what does matter, nor is it difficult to buy another ball. Neither the importance cost of the ball has importance, and neither is to purchase again difficult. Both are simple, easy to do. बच्चा खरीद भी लेगा दूसरी बाल, और यह बाल खो गई तो कितनी महंगी बाल है, यह महंगा होना या कॉस्ट क्या है उस बाल की, यह मायने नहीं रखता। Why then is the boy so upset? तब पोएट कह रहे हैं कि सोचो, बच्चे के दिमाग में वह हर चीज जिसे वो लव करता है, उसकी वह चीज खो जाती है, तो उस चीज की कीमत, द प्राइस कॉस्ट ऑफ दैट थिंग डज नॉट मैटर, कितनी महंगी है उसे यह मायने नहीं रखता। उसके बाद दूसरी चीज खरीद लेना भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जानता है खरीद लेंगे पा जाएंगे। फिर पोएट कह रहा है कि सोचो, तब ऐसी क्या चीज है कि खो जाती है तो बच्चा इतना परेशान या दुखी होता है, या बहुत मन में मतलब बेगुनी द एक्सट्रीम पेन रियलाइज करता है। व्हाट डज मैटर, फॉर व्हाट रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच एगोनी, पेन इन द हार्ट, इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, व्हेन द कॉस्ट डज नॉट मैटर, and more than this, to purchase again also does not matter, then for what that agony is in the heart of that child. Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. अब आगे पोएम पढ़ने को कवि कह रहे हैं, पढ़ो। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up.
knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. John Berryman. So I think during the reading, you have come to realize that what was the reason that any child gets upset when he loses his things, his belongings. But once more, I am going to explain what is the boy now. Means in which, what is the, means in which condition, in which situation the boy is now. Who has lost his ball, who has lost his things. मीन्स पोएट कह रहे हैं कि वह बच्चा अब किस कंडीशन में है, क्या चीज उसके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है वो बच्चा जो अपनी चीज खो दिया है, अपनी प्यारी सी बॉल खो दिया है, वह हर कोई एक प्यारी चीज खो दिया है जिसे ही लव्ड टू प्ले विथ, जिस चीज से वह खेलना पसंद करता था. what is he to do now, what will he do, उसे अब क्या करना है, वह क्या करेगा, वह क्या सोच रहा है. व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द बॉय. पोएट कह रहे हैं सब कुछ. आई सा इट गो मेरीली बाउंसिंग. अब कह रहे हैं पोएट, देखो अभी तक ये क्वेश्चन है कि उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी कि वो अपनी चीज खो दिया है, उस चीज के लिए उसके मन में, उसके दिल में क्या चल रहा होगा, ये क्वेश्चन है. अब आगे पोएट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहले अभी बॉल खोई नहीं है तब दृश्य कैसा था. पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग नाउ. कह रहे हैं कि आई सा इट गो मेरीली. आई मीन्स द पोएट, साथ इट गो, इट मीन्स द चाइल्ड. गो मीन्स उन्होंने थोड़ी देर पहले बच्चे को देखा. मेरीली बाउंसिंग, मेरीली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स टेकिंग जंप, मेकिंग जंप. मीन्स थोड़ी देर पहले बच्चा बॉल लेकर हाथ में उछल कूद करते हुए जा रहा था. ठीक. डाउन द स्ट्रीट, गली में जा रहा था. एंड देन मेरीली ओवर, एंड देन क्रॉस्ड द, डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट. हंसते खेलते कूदते जा रहा था और जाकर फिर गली में गायब हो गया, कहीं और चला गया. कहाँ गया, डोंट नो पोएट. एंड देन देयर इट इज इन द वाटर, नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स. अब कह रहे कि देयर इट इज इन द वाटर. अब जो बॉल है, वो बच्चा जिस बॉल से खेल रहा था लेकर के हंसी खुशी जा रहा था. मिस देखो अब वो कह क्या रहे हैं कि बच्चा हंसी खुशी जंप करते हुए जा रहा था. मीन्स एट दैट टाइम बॉय वाज प्लेइंग एंड बॉल वाज जंपिंग, देन बॉय वाज जंपिंग इन होल्डिंग द बॉल. बॉल वाज मेरी, बॉय वाज मेरी. बॉल वाज गोइंग मेरीली, बॉय वाज आल्सो गोइंग मेरीली. यानी देखो हाउ अफेक्शन इज बीइंग अटैच्ड बाय पोएट विद द बॉय. लाइफलेस थिंग इज बीइंग अटैच्ड विद द डीप हार्ट एंड डीप इनोसेंट माइंड ऑफ द बॉय अफेक्शनेटली. एक निर्जीव चीज कैसे एक बच्चे से जोड़ रहा है पोएट. दिस इज द पोएटनेस, दिस इज द कविता, राइटिंग ऑफ द पोएट, इमेजिनेशन ऑफ द पोएट. कवि कह रहे हैं कि बच्चा खुद नहीं जंप कर रहा था. मीन्स ऊपर कहे ना कि बच्चा क्या करेगा, क्यों बच्चा इतना अपसेट हो जाता है. दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है, दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन नहीं. साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि बचपन में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, चीजें मिलती हैं तो वो बच्चे दिल से उन चीजों से जुड़ जाते हैं. उन्हें लगता है कि यह चीज अपने आप में यूनिक है, यही इनका सब कुछ है. तो बॉल, बच्चा नहीं खुश था. खुश इसलिए बॉल खुश हो रहा था क्योंकि बॉल खुश थी. बॉल जंप कर रही थी तो बच्चा जंप कर रहा था. बॉल मैरीली इधर उधर रोल कर रही थी तो बच्चा वाज रनिंग आफ्टर, चेजिंग आफ्टर द बॉल. Miss boy, that child was affectionately attached with that ball. That ball was or is the source of the cheerfulness, pleasure of the child. I think now it is clear how attachment has been made done here. फिर वो कह रहे हैं आगे, there it is in the water. अब ये कह रहे हैं कि बच्चा पानी में चला गया, गिर गया, खो गया. मीन्स बच्चा नहीं खोया. द बॉल हैज लॉस्ट देयर इन द वाटर. खेलते खेलते बॉल बिकेम अनकंट्रोल्ड फॉर द बॉय एंड वेंट एंड डिप्ड इनटू द वाटर. बॉल गई और पानी में लुढ़क के चली गई, गिर गई. अब द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड हैज डिप्ड इनटू द वाटर, ड्रॉन इनटू द वाटर. यानी जो सोर्स था, खुशी का सोर्स था, आनंद आमोद प्रमोद का सोर्स था उस बच्चे का,
जिसके वजह से उसमें मोशन था, हैप्पीनेस था, वही डूब गया। मीन्स देयर इज नो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, चाइल्ड इज ऑल अलोन। देयर इज द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप, trustness on each other with the ball and boy, but now trust has been broken। जो बच्चे का विश्वास है, संबंध है, वो टूट चुका है, बॉल खो चुकी है, अब बच्चा अकेला है। तो समझे क्यों? इसी वजह से कि संग साथ होता है, उनका जुड़ जाते हैं। नो यूज टू से, अब इस कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कह रहे बेटा कोई बात नहीं, वो चली गई तो क्या, दूसरी बॉल तो आ जाएगी। तो बच्चा ये नहीं जानता कि दूसरी बॉल आ जाएगी ये, लेकिन आप अब खुद सोचो। पोएट इज सेइंग दैट यू थिंक योरसेल्फ in your mind that if you would purchase new ball or you purchases a new ball again for that boy, then there is a difference gap between them, that ball and that ball। वो बॉल से अफेक्शनेटली अटैच हो गया था बच्चा, नई बॉल है, अभी जुड़ेगा, अभी तो जाओगे लाओगे तब ना दोगे, और वो उसके साथ थी। that boy was playing with that toy affectionately, sympathetically, सहानुभूति थी, जुड़ाव था। This is the reason that anything loses if any child, then he gets poignant and sorrowful due to the deep affection with that thing। An ultimate shaking grief fixes the boy, fixes means जमा देता है। अब ultimate grief यानी एक दुख, एक संतप्त, एक पीड़ा जो उस बॉल के खोने से उस बच्चे के दिलो दिमाग पे छा जाती है, उस बच्चे को एकदम फिक्स्ड एक ही जगह जमा देती है, फ्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अफेक्शनेटली जुड़ा है। आप ही का बच्चा है, अगर देर तक किसी चीज से खेल रहा है, वो ऐसी चली जाती है तो पहले तो थोड़ी देर घूरता है, कहाँ गई कैसे गई, फिर अगर बहुत चंचल स्वभाव का है थोड़ा, तो लौट के आएगा आपके पास और आकर फिर ले जाएगा, दीदी भैया चलो बॉल वहां गई या ये चीज वहां गया, फिर जाते हो आप। वो चाहता है तो दूसरी खिलौने भी हैं, लेकिन खेल रहा है, खो सेम टाइम भी तुम ले सकते हो, अदर टॉयज रखे हुए हैं, लेकिन वो टॉय जो खो गया, गिर गया, डूब गया, या कुछ ऐसी जगह हुआ जहां से वो नहीं पा सकता है, तो वो आएगा पहले उस चीज के लिए वो करेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, एट द प्रेजेंट, हर अफेक्शन इज अटैच्ड विथ दैट टॉय। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सो एन अल्टीमेट शेकिंग grief fixes the boy, एक दुख, एक पीड़ा उस बच्चे को जमा देती है, उसी जगह खड़ा है, गेजिंग द बॉल, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कह रहा है कि अब वहां खड़े होकर वो कंटिन्यू स्टेयरिंग डाउन, लगातार नीचे देख रहा है, झांक रहा है, उसी जगह जहां बाल पानी में गिरी है देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर मींस बंदरगाह, मींस यहाँ हार्बर इज द सोर्स ऑफ द वाटर वेयर द लॉट ऑफ वाटर इज कलेक्टेड एंड बॉल हैज डिप्ड इनटू, जहां ढेर सारा पानी है और बॉल डूब गई है, वहां की बात पोएट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वहीं जाके बार बार खड़ा होके जब ही नहीं तभी जब मौका पाता है जाता है, उससे याद आते है, वहीं खड़े होकर देखता है कि मेरी बॉल कब बाहर निकल के आ जाए। हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई हुई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई मीन्स द पोएट, कवि कह रहे हैं कि मैं उसे इंट्रूड, उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उस बच्चे को, मीन्स आई का मतलब यहाँ पोएट अपने को कह रहे हैं, लेकिन अपने से मतलब टू एवरीबडी, एवरी पेरेंट, गार्जियन एंड एवरी नियर डियर ऑफ दैट चाइल्ड, वुड नॉट इंट्रूड हिम, कोई दखल नहीं दे सकता, कोई उस बच्चे को अब समझा नहीं सकता। और डाइम एंड अदर बॉल, कह रहा है कि डाइम इज द, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मनी, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए के बाद 10 करके 100 रुपए होता है, तो 10 रुपए का मान लो एक डाइम होता है मेजरमेंट। तो कह रहा है कि अ डाइम एंड अदर बॉल मींस दूसरी बॉल आ जाएगी, थोड़े से पैसे की है, कोई बात नहीं है, इज वर्थलेस, कह रहे कि वह बॉल खो गई, उससे अधिक की बॉल ला दो या थोड़े पैसे में कोई और बॉल ला दो, दैट डज नॉट मैटर फॉर हिम। व्हाट डज मैटर? मैटर्स ओनली दैट when would he receive his own ball, old ball, with which he is affectionately attached. Diameter ball is worthless, now he senses first responsibility, अब now he is learning his first responsibility, पहली जिम्मेदारी वह समझा उसके दिमाग में आई कि अरे चीज खो भी जाती है, मेरी चीज है, कैसे वापस लाऊं,
मेरी चीज है, कैसे खो गई, चली गई। मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोसेशन एंड मेंटेनेंस स्टार्ट्स इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, अधिकार की दुनिया में उसे अपनी पहली जिम्मेदारी समझ में आई कि अरे मुझे संभल कर खेलना चाहिए था, मेरी बाल खो गई, अब इधर आऊंगा नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो फिर खो जाएगी। पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कह रहे हैं कि लोग तो बॉल लाते रहेंगे गार्जियन बच्चों के लिए और बॉल खोती रहेंगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आ गई बच्चों को। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कह रहा है कि लेकिन बच्चे के लिए क्या है कि कोई भी बॉल को बैक वापस खरीद कर नहीं ला सकता। तो कहते हैं ना कि हम बॉल खरीद देंगे दूसरी या बॉल खरीद देंगे, लेकिन बॉल आप खरीद देंगे ठीक है, लेकिन वह बॉल तो वापस नहीं ना ला सकते, और वह बच्चा उस बॉल से जुड़ा हुआ है तो नई बॉल से फिर जुड़ेगा तब ना। तो जो गया सो गया, अब उसे वापस कैसे कोई ला सकेगा। And this is the sense of the loss in the heart and in the mind of the child, and due to that he goes upset deeply after losing his near and dear things, toys or ball, whatever you can say. Money is external, पैसा तो बाहरी चीज है, आता जाता रहेगा। The affection into the deep heart matters. He is learning well behind his disparate eyes. Disparate मीन्स होता है हतोत्साहित, होपलेस आइज मीन्स आंखें। अब वह खोई हुई बाल को देख देख के सीख रहा है, उदास आंखों से सीख रहा है कि नहीं, चीजें खोती हैं, मेंटेन करके संभाल कर खेलेंगे, बचा कर खेलेंगे। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोम होता है, एपिस्टमे का मतलब होता है जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब द नॉलेज ऑफ द लॉस। अब तक उसे समझ नहीं था कि चीजें खोती भी हैं, लेकिन जब खो गई तब उसे समझ में आया कि अरे यार चीजें खो भी जाती हैं। अब वो समझ रहा है, तब कह रहा है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तब उसके दिमाग में रहा है कि हम संभाल के खेलेंगे, संभाल के रखेंगे तो चीजें नहीं खोएंगी। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know way many ways how to stand up। कह रहा है कि हर कोई जानता है, व्यक्ति से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कि एक न एक दिन हम सबको खड़ा होना है। सब खड़ा होते हैं, खड़ा होकर ही चला सकता है। बच्चा देख रहा है छोटा सा है, मम्मी पापा गार्जियन को, घर के लोगों को खड़ा होते तो जान रहा है कि खड़ा होकर चला जाता है, और उसे भी खड़ा होना है। He wants to know stand, wants to stand, but he does not or don't know how to stand। एग्जाम्पल दे रहे हैं कवि कि बच्चा देख रहा है, जान रहा है कि खड़ा होकर चला जाता है और चलना चाहता है, लेकिन नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वह नहीं जानता है कि खड़ा हुआ कैसे जाता है। उसी तरह से बाल चीज है, पॉसेशन का है कि मेरी चीज है, हमारी है, लेकिन कैसे अपनी चीज को अपनी बना कर रखा जाता है वह नहीं जानता। जब कोई है तब जाना है कि कैसे रखना है, सीखना है, कैसे बचाया जाता है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह समझ रहा है। दिस इज योर होल पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट देन मे आस्क।